In our previous videos, we learned about variables, data types, input function as well as typecasting. But today we are going to learn something that you will use in almost every program in Python you will make. But before starting the topic for today's video, I would like to ask some questions. I have some questions. Like, if I want to store my name in Python, how would I do that? If I want to store my city or my address, residential address or my email address, can Python store all of these? Because these are different kinds of data. Can Python store all of these? But if yes, then how? That only we will learn today. Let's understand what exactly strings are. हमने पिछली दो वीडियो के अंदर एक टॉपिक का नाम लिया था, एक कंसेप्ट का नाम लिया था, वो थी स्ट्रिंग्स. मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ कोटेशन मार्क्स के अंदर आ जाती है पाइथन के अंदर, वो स्ट्रिंग्स कहलाती है, वो टेक्स्ट बन जाती है. बट स्ट्रिंग्स एक्चुअली में क्या है हम डीपली नहीं जान पाए थे, क्योंकि वो दो वीडियोस स्ट्रिंग्स के रिलेटेड नहीं थी. नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रिंग्स आर, व्हाट इज इट्स यूज एंड हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग्स इन पाइथन. Now imagine if I ask you to make a program where the user enters the name. Where will Python store it? That's the question. हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे यूज़र अपना नेम एंटर करता है. पाइथन उसको कहाँ पे स्टोर करेगा? क्या पाइथन एक एड्रेस को स्टोर कर सकता है? क्या पाइथन एक मैसेज को स्टोर कर सकता है? क्या पाइथन एक ईमेल एड्रेस को स्टोर कर सकता है? यही क्वेश्चन हमने पहले पूछे. सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट डेटा. ये सब कुछ टेक्स्ट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट है, मतलब कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट है, लेकिन है एक टेक्स्ट ही. सो वेन एवर वी वॉन्ट टू स्टोर टेक्स्ट, स्ट्रिंग्स बिकम आवर बेस्ट फ्रेंड. जब भी हम टेक्स्ट को स्टोर करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग्स का ही इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज only and only way in Python to store text is strings. But now how? Let's see. Now I'm writing here, I'm taking a variable name, I'm storing a name John, and I'm printing the variable name because I want to fetch the value or the data that is stored inside that variable. So now you see, look at it, notice the name is written inside the quotation marks. That also we have discussed in the previous two videos, that something in quotation marks, anything in quotation marks considered as a text, as a string. Now that's how Python knows it is a text. Like the power is in the quotation marks. इसकी वजह से ही Python जान पाता है कि एक text है. Now I will be printing this. Now see the name John has been printed here. So that is how the Python knows what strings, like how the data has been given, whether the data is a text. So it categorizes it into string. Ultimately the power is in the quotation marks. अगर हम quotation marks को हटा देंगे तो यहाँ पे एक एरर शो होगा, क्योंकि ऐसी कैटेगरी का डेटा पाइथन में है ही नहीं जो स्ट्रिंग्स के अलावा कुछ और हो सके. मतलब कोटेशन मार्क्स ही स्ट्रिंग्स हैं. कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो स्ट्रिंग है, वो टेक्स्ट है. अगर हम कोटेशन मार्क्स हटा देंगे तो इट वोंट रन. अ स्ट्रिंग इज सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है एनक्लोज इनसाइड कोटेशन मार्क्स, जो कोटेशन मार्क्स के अंदर एनक्लोज्ड है, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है. Now don't get scared by the word sequence. It simply means a collection of characters placed one after other. एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है जो एक के बाद एक प्लेस करे गए हैं कोटेशन मार्क्स के अंदर. केवल वो ही है स्ट्रिंग. Now take an example. Python. Python is a string. Now we have typed hello world. You can see here in the slide, hello world is a string because it is stored in the quotation marks. But also you can see here some numbers 1, 2, 3 are some numbers, but they are stored inside a quotation marks, double quotation marks. So they are a string. They will be considered as a string. So numbers inside quotes are also strings. Now let's see here. If I type here print, I've shown you previously as well, but I'm showing you again. I'm typing 1, 2, 3 right now. So you can type the data directly into the function as well. Like ज़रूरी नहीं कि आपने वेरिएबल को पहले से क्रिएट कर रखा हो, उसके अंदर डेटा स्टोर कर रखा हो. आप चेक करने के लिए डायरेक्टली वैल्यू को भी, डेटा को भी प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली फंक्शन को. So now let's run it. Let's see here the class has been displayed as string. So वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, Python clearly tells us that this is a string because it is stored inside a quotation marks. So now the thing is, how do we create strings exactly? हमने ये तो जान लिया quotation marks के अंदर कुछ भी आता है तो वो string बन जाता है, लेकिन how do we actually create strings? पहला जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि आप किसी भी चीज़ में quotation marks लगा दो तो वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा. लेकिन इसके डिफरेंट मेथड्स हैं. लाइक कोटेशन मार्क्स भी केवल एक तरह का नहीं है, 3 तरह के कोटेशन मार्क्स हैं जो आपको लगाने हैं टू क्रिएट स्ट्रिंग्स. अगर आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करते हो तो स्ट्रिंग बन जाएगी. सो फर्स्ट इज द सिंगल कोट्स. अगर आप कुछ भी सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहे हो तो वो एक स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा. एंड देन सेकंड वे इज डबल कोट्स. अगर आप कुछ भी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख रहे हो वो भी एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा, और सिंगल और डबल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वो स्ट्रिंग की तरह ही कंसीडर किया जाएगा. थर्ड इज द ट्रिपल कोट्स. अगर आप कुछ भी ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिख रहे हो तो वो भी एक स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, और सिंगल, डबल और ट्रिपल में कोई भी डिफरेंस नहीं है. नाउ कम्स अप द ट्रिपल कोट्स. व्हाई, लाइक in Python, like programmers or developers usually use it when they want multiple lines, multiple or you can say multi-line string बनाने के लिए डेवलपर्स इस ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं. मतलब यूजुअली अगर कोई सिंगल लाइन, अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो वो या तो सिंगल कोट में वो स्टोर करते हैं
यूजली आपको बता रहा हूँ गुड प्रैक्टिसेस जो होती हैं कोडिंग की, और डबल कोट्स के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन अगर कुछ उन्हें मल्टीपल लाइन्स में चाहिए, स्ट्रिंग्स है, बहुत सारे टेक्स्ट है मतलब जो कि मल्टीपल लाइन में आता है, तो वो ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ हियर कम्स अप वन मोर कंसेप्ट हियर। ट्रिपल कोट्स के अंदर अगर आप कुछ भी स्टोर कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आप उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करते तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, तो वो बन जाती है मल्टी लाइन कमेंट। नाउ लेट्स सी। नाउ हियर आई वुड प्रिंट हियर hello, I would print hello, and again I would print hello in double quotes, and now hello in triple quotes. Now let's see what it shows. I have to comment it out these all ताकि आप कंफ्यूज ना हो इससे। Now see, I am running this. So see, सबको एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया गया और हेलो 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 3 बार प्रिंट हो गया। पाइथन के अंदर सेम कैटेगरी के अंदर ये सब स्टोर हुआ, हेलो 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 तीनों ही स्ट्रिंग की तरह स्टोर हुआ, चाहे आपने सिंगल कोट लगाया, डबल कोट लगाया, ट्रिपल कोट लगाया। लेकिन यूजली जब भी हम ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करते हैं वो एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि मल्टीपल लाइन्स में आ रही है, टेक्स्ट है जो कि मल्टीपल लाइन्स में आ रहा है, तब आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस इन पाइथन। वरना आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो वर्किंग एज यू कैन सी, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस। सो अब मैं आपको बता रहा था मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट्स में अगर लिख रहे हैं और ट्रिपल कोट्स में लिखने के बाद भी अगर आप उसे एज अ वेरिएबल आप नहीं दे रहे हैं, वेरिएबल को आप असाइन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और मैंने यहाँ से प्रिंट फंक्शन पे हटा दिया, और मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखता हूँ अभी, हेलो आई हैव टाइप्ड वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल एंड आई एम टाइपिंग इन द नेक्स्ट लाइन। अब मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टी लाइन कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। सो हियर बिकॉज मैंने किसी भी वेरिएबल को ये डेटा नहीं दिया, ये टेक्स्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग की तरह नहीं, एक मल्टी लाइन कमेंट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर इसे इग्नोर करेगा, बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर इन द प्रीवियस वीडियोस दैट कमेंट्स को इंटरप्रेटर हमेशा इग्नोर करता है, कमेंट को नहीं प्रिंट करेगा। नाउ यू सी हियर इफ आई एम रनिंग दिस इट वोंट बी प्रिंटेड, कोई भी एरर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज इट इज इग्नोर्ड कंप्लीटली बाय द इंटरप्रेटर, क्योंकि हमने किसी भी वेरिएबल को इसे असाइन नहीं किया है। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग की जगह मल्टी लाइन कमेंट बन गया है। Now see, hello and hello 2 times are printed. Like writing everything in one line won't look good. कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही लाइन में आपके पास बहुत सारा डेटा लिखने को, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना लिखने को तो आप लिख सकते हो, लेकिन वो अगर मतलब उसकी रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ानी है तो आप उसे मल्टीपल लाइन्स लिखेंगे तो वो बेटर माना जाएगा। दैट इज वाई ट्रिपल कोट्स आर यूज्ड। नाउ मेनी बिगनर्स थिंक लाइक स्ट्रिंग्स आर ओनली यूज्ड फॉर नेम। बहुत लोग ये सोचते हैं, बहुत जो बिगिनर बहुत ही स्टार्टिंग में पाइथन सीख रहे होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि स्ट्रिंग्स को केवल नेम स्टोर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि स्ट्रिंग्स को ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूज़ करा जाता है। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें, आप नेम स्टोर करते हैं स्ट्रिंग्स में, वो तो करते ही करते हैं, ईमेल स्टोर कर सकते हैं, आप एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, मैसेज स्टोर कर सकते हैं, कोई भी आप वेबसाइट स्टोर कर सकते हैं, वेबसाइट का जो URL होता है वो स्टोर कर सकते हैं, आप फोन नंबर स्टोर कर सकते हैं इन स्ट्रिंग्स एज स्ट्रिंग्स। नाउ लुक एट समथिंग इंटरेस्टिंग। नाउ सी हियर I've taken a variable mobile and I've stored a number inside it. But can you tell me, is this really a number right now? Like as a student, you will say yes, it is a number. But as a programmer, you will say that it is not a number right now, because I've told you many times that anything stored inside the quotation marks is considered as a string. But now you would say that like phone numbers, why do we need to store as strings? Real life example मैंने आपको दिया कि phone numbers आप strings की तरह store करते हैं, लेकिन उसका use क्या है? phone number तो एक number की तरह store होना चाहिए ना? Then why do we store it as a string? Because we never multiply phone number. हम phone number की कभी भी multiply नहीं करते, कोई भी multiply तो छोड़िए, कोई भी mathematical calculation हम phone number पे कभी भी apply नहीं करते, कभी plus, multiply, divide, minus, ये सब आपको कभी आपने देखा है कि आप phone number पे apply करें? phone number is a fixed data, is a static data जो कि store होता है एक बार और बाद में change नहीं होता, change कर सकते हैं हम उसे, लेकिन हम ये नहीं कि उस पर कोई mathematical calculation apply कर रहे हैं। So they are simply text used for identification. ये एक identification purpose के लिए use किया जाता है, तो simply एक text की तरह store होता है, तो हम strings की तरह उसे store करते हैं। That is what it makes as a real life example. So this example makes the concept clear. So these were all the examples that are taken from real world. Like real world में भी आप कोई प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं तो आप स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, आप नेम की तरह स्टोर कर सकते हैं, सिटी की तरह स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकते हैं, मतलब सिटी स्ट्रिंग्स में स्टोर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को स्ट्रिंग्स की तरह स्टोर कर सकते हैं, मैसेज को स्ट्रिंग्स की तरह स्टोर कर सकते हैं। एंड now you know that why mobile numbers are stored as strings. So now that was the introduction about strings, and you know a brief introduction about what strings actually are, how to create them, and how to identify them. And you also know that what is a slightly difference in multi-line strings and multi-line comments. So that's all for today's video.